नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी गुनाह में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। SIR के तरीक़ेकार पर अपोजिशन की तशवीश। 23 जमातों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा खत। TMC ने BJP और इलेक्शन कमीशन पर लगाए संगीन इल्ज़ामात। ऑपरेशन सिंदूर के मामले पर वज़ीर दिफा ने ऐवान को गुमराह किया। कांग्रेस का इल्ज़ाम। इस्तेखार शिकनी की कार्रवाई करने का किया मुतालबा। कहा शहीद फौजियों की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असदुद्दीन अवीसी ने यूपी में इंतखाबी सरगर्मियां शुरू कर दी। बिजनौर में इंतखाबी जलसे के दौरान योगी आदित्यनाथ को बनाया निशाना। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर कांग्रेस की कड़ी तनकीद। SIT रिपोर्ट आम करने का भी किया मुतालबा। जनरल द्विवेदी फौजी सरबराह के ओहदे से सुबकदोश। जनरल धीरज सेठ ने नए फौजी सरबराह की जिम्मेदारी संभाली। नई थी सुर्खियां, अब खबरों में तफसील पेश है। इंडिया अलायंस की इत्तेहादी जमातों ने वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी यानी SIR और इलेक्शन से मुतालिक दीगर मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक मुश्तरका ख़त इरसाल किया है। इंडिया अलायंस की मीटिंग 8 जून को हुई थी। इस मीटिंग में 21 पार्टियों और एक आज़ाद मेंबर ने हिस्सा लिया था। इस ख़त के मुंदरजात की तफसीलात शेयर नहीं की गईं। 8 जून को मुनक़िदा मीटिंग में यह फ़ैसला लिया गया था कि चीफ जस्टिस को मुश्तरका तौर पर ख़त लिखा जाएगा। अब इसी सिलसिले में आज मंगल को 23 जमातों और एक आज़ाद मेंबर के दस्तखत वाला ये ख़त भेज दिया गया है। Complete unity in the non-NDA opposition that the SIR process is being used for the benefit of the BJP to manipulate election results. In an unprecedented move, this has not happened before. 23 opposition parties, including the DMK and the Aam Aadmi Party, plus the 21 India Alliance parties who had met on June 8th, have written a joint letter to the Chief Justice of India appealing to the conscience of the judiciary at the manner in which the SIR process is being used to benefit the BJP. Elections are being manipulated, the voting process is being manipulated, and the election commission is acting as a 12th man of the BJP. So we are appealing to the judiciary. For the first time, a joint letter has been written by 23 opposition parties appealing to the judiciary. It's been written to the Chief Justice of India, appealing to the judiciary on the manner in which the SIR process is being manipulated to benefit the BJP. Ma'am, but the sources told ANI that hectic talks behind India Alliance managed to get signature of DMK and AAP in the joint letter. Do you think so? That's exactly what I said, that that 21 opposition parties met on June 8th and the decision was taken that we would work unitedly against the manner in which the SIR exercise is being manipulated to benefit the BJP. Elections are being manipulated, the electoral process has been manipulated, voting is being manipulated to benefit the BJP through the SIR process. So now, in a unprecedented move, it has never happened before that 23 opposition parties, this time including the Aam Aadmi Party and the DMK, they have also signed this letter. We have written to the Chief Justice of India appealing to the judiciary on the manner in which the SIR process is being manipulated by the BJP. Ma'am, because we saw that between DMK and Congress after... No acrimony, no, there's no acrimony at all. The non-NDA opposition is completely united. And we are moving forward in the spirit of solidarity, unity and resistance against the manner in which the voting process and the SIR process, the electoral process is being hijacked to benefit the BJP. Indian democracy is being hijacked today by the BJP. Indian democracy is being destroyed by the BJP. The SIR process is being manipulated through the BJP's 12th man, the Election Commission. So therefore,
all opposition parties, all non-NDA opposition parties are completely united. There is no disunity. There is no disunity. We are completely united. We have, for the first time, written a joint letter. 23 opposition parties have signed to the Chief Justice of India, appealing to the judiciary against the SIR process, the way it is being manipulated to benefit the BJP. As the letter has been already written and It has been sent. The letter has been sent. Already sent. So what will you expect from the outcome regarding? We are going to move. We are appealing to the judiciary to look into the SIR process, to supervise the SIR process, precisely because it is being manipulated to benefit the BJP. And we are going to move forward in a spirit of complete unity, solidarity and resistance against the BJP and the manner in which it is trying to hijack Indian democracy. कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने ऑपरेशन सिंदूर के ताल्लुक से लोकसभा में दिए गए वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान पर संगीन सवालात उठाए हैं। इल्ज़ाम है कि इन्होंने ऐवान और मुल्क के अवाम को गुमराह किया है। मिस्टर वेणुगोपाल ने मंगल को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर वजीर दिफा के खिलाफ इस्तेकाक शिकनी की कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त की है। इन्होंने कहा कि जुलाई 2025 में मिस्टर सिंह ने लोकसभा में दावा किया था कि ऑपरेशन के दौरान कोई भी हिंदुस्तानी फौजी शहीद नहीं हुआ, जबकि एक साल बाद खुद मुसल्लह अफवाज ने 6 जवानों के शहीद होने की मालूमात फराहम की हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि अगर 6 जवान मुल्क का दिफा करते हुए शहीद हुए तो उनकी शहादत की मालूमात मुल्क और पार्लियामेंट से क्यों छुपाई गई। इन्होंने इसे शहीद जवानों के ख़ानदानों और हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की संगीन तौहीन करार दिया। इन्होंने कहा कि मुल्क की खिदमत और सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले जवानों की शहादत को छुपाना किसी भी हुकूमत के लिए मुनासिब नहीं है। उनका इल्ज़ाम है कि मरकज़ी हुकूमत जो ख़ुद को कौम परस्त बताती है, शहीदों की कुर्बानी के सिलसिले में सच नहीं बताया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक अगर कोई वजीर ऐवान को गुमराह करता है या अहम मालूमात छुपाता है तो इस्तेकाक शिकनी और ऐवान की तौहीन के ज़ुमरे में आता है। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगल को मरकज़ के मुजवज़ा देहरी रोज़गार प्रोग्राम के निफाज के ताल्लुक से वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर शदीद हमला करते हुए इल्ज़ाम लगाया हुकूमत ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा को मौसर तरीके से ख़त्म कर दिया है और देही हिंदुस्तान को इसके काम के हक़ से महरूम कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने मनरेगा की तामीर इल्तवा अदायगियों, मुजवज़ा विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन जी राम जी के ग्रामीण वीबी फंडिंग के तरीक़ेकार और इक़दाम पर मरकज़ से सवाल उठाए, जिन्हें किसानों और देही मजदूरों को नुकसान पहुँचाने वाला करार दिया। खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म को मुखातिब करते हुए सिलसिलावार सवालात उठाने से पहले कहा, मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपने मौसर तरीके से मनरेगा को ख़त्म कर दिया है, जिससे देही हिंदुस्तान से काम का हक़ छीन लिया गया है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवीसी की यूपी में इलेक्शन सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। असदुद्दीन अवीसी ने यूपी के बिजनौर में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए रियासत के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अगर हम अपने बूढ़े लोगों के लिए हुकूमत से एक अस्पताल चाहते हैं, अगर हम इज्जत चाहते हैं, अगर हम बेबाक तरीक़े से अपने दीन पर अमल करना चाहते हैं, तो याद रखिए आपको उत्तर प्रदेश में अपनी एक सियासी क़ियादत को बनाना पड़ेगा। और इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि जो कोई आकर ये कहता है कि अगर अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप बनेगी तो इससे फ़िरक़ा परस्ती में इजाफा होगा, मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर फ़िरक़ा परस्ती के इस समंदर में आज इस मुल्क को घेरा जा रहा है, जगह जगह पर हमको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वही लोग हैं जो पिछले 70 साल से मिल्लत मज़लूमा को ये कह कह कर सुलाते रहे और उनको रोकते रहे कि नहीं नहीं, आपकी और हमारी लीडरशिप नहीं हो सकती है, हमको नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का साथ देना है। बताइए अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने 70 साल में हर किसी सियासी जमात के हक में वोट दिया, बताओ हमारा क्या फ़ायदा हुआ? हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। इसीलिए मैं आज आपसे फिर से अपील कर रहा हूँ कि मुत्तहदा तौर पर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए आने वाले असम्बली और विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आप कामयाब करिए। यकीनन हम भी नहीं चाहते
कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई हमसे गठबंधन करने तैयार है बीजेपी को रोकने के लिए, तो असदुद्दीन ओवैसी आधे रास्ते तक पैदल चलकर आने तैयार है। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की सरकार यहां पर बने। मगर याद रखिए, अगर आप ये समझते हैं कि नहीं समझौता नहीं होगा, तुम्हारा काम सिर्फ वोट डालकर अपने घर में जाकर खामोश बैठ जाना, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब वोट डाला जाएगा। कांग्रेस ने दावा किया कि इसके एक वफ्द को अयोध्या में राम मंदिर जाकर भगवान राम के दर्शन करने से पहले ही नजरबंद कर दिया गया। पार्टी ने इस मामले में उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और इसके कार्रवाई को अवामी जज्बात के खिलाफ करार दिया। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर जारी एक बयान में कहा कि आज पार्टी का एक वफ्द अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने वाला था, लेकिन नजरानी की चोरी में मुलविस बीजेपी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय राज और वफ्द के दीगर अरकान को हाउस अरेस्ट कर दिया। कांग्रेस ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में बड़े और जिम्मेदार लोगों को बचाने का इल्जाम लगाते हुए मरकजी हुकूमत और मंदिर ट्रस्ट से मुताल्लिक जांच के लिए तश्कील दी गई खुसूसी जांच CIT की रिपोर्ट आम करने का मुतालबा किया है। कांग्रेस की सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन मोहतरमा सुप्रिया श्रीनीत ने मंगल को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी महापाप है, लेकिन इन पर प्रतिष्ठा और संग बुनियाद में अहम किरदार अदा करने वाले वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस मामले पर खामोश हैं। हमारी पहली मांग है कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार SIT की जांच रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक करे, इसको एक वेबसाइट पर डाला जाए जिससे इस देश के 100 करोड़ हिंदू उसको पढ़ सके, उसको देख सके और समझ सके कितना बड़ा घोटाला हुआ है, किसने किया है। हमारी दूसरी मांग है कि जो कलंकित ट्रस्ट है, जिसकी नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हुई, उसको भंग किया जाए, उसकी कोई विश्वसनीयता अब रह नहीं गई है। हमारी तीसरी मांग है कि चंपत राय बंसल और उनके जैसे जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़ा पैसा डकार कर बैठे हैं, उनके खिलाफ भी FIR हो, उनकी भी जांच हो। इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, वो आंख में धूल झोंकने का काम है। हमारी चौथी मांग है कि जब 40 दिन में 70 चोरियां सामने आ रही हैं, तो शुरू से जो चढ़ावा चढ़ा है उसका निष्पक्ष ऑडिट हो, स्वतंत्र ऑडिट हो। देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने भूमि पूजन से लेकर शिलान्यास और उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा सब किया, शंकराचार्यों को किनारे करके किया, हर मान्यता को ताक पर रख के किया, श्रेय लेने के लिए किया, आज इस चंदा चोरी पर, इस महापाप पर चुप क्यों है? उनको अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। इस देश से हिंदुओं की आस्था को आहत करने के लिए, विश्वासघात करने के लिए, धोखा करने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। और हमारी अंतिम और सबसे जरूरी मांग है कि इस पूरे महाघोटाले की जो जांच है वो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में हो, जिससे सच सामने आए। क्योंकि SIT जो बाबुओं से बनी हो और बाबू को ही जाकर रिपोर्ट दे रही है, कातिल और मुंसिफ एक होकर सच सामने नहीं आ सकता है। धर्म को ठेस पहुंची है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ है, लोगों ने अपना पेट काट कर जो चंदा दिया था उसकी जबरदस्त चोरी हुई है और सच सामने आना जरूरी है। मैम, इधर से एक सवाल है। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 के पहले जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पे गोलियां चलवाती थी और कांग्रेस जो राम का अस्तित्व पे ही सवाल उठाती थी, आज वो लोग राम भक्त बन रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से मेरा सिर्फ एक सवाल है, इतना बड़ा चंदा चोरी होता रहा, लोग जब चंदे की बात करके बोलते थे कि भाई चोरी हो रहा है, उनकी नौकरियां जाती रही, आपको कुछ पता कैसे नहीं चला? आप कौन सी नींद सो रहे थे? पूरे कुएं में भांग पड़ी है क्या? दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कौन सी नींद आप सो रहे थे? आपको पता ही नहीं चला कि नाक के नीचे मंदिर में क्या चल रहा है? और मैं उनसे पूछना चाहती हूं, SIT की रिपोर्ट इतनी गुप्त, इतनी गोपनीय क्यों रखी गई है? चंदा चोरी हुई है, चंपत राय बंसल सर्वे सर्वा थे, उनसे इस्तीफा लेके उनको किनारे चुपचाप क्यों निकाला जा रहा है? उनको बचाने की क्या कवायद है? योगी आदित्यनाथ जी से मेरा सवाल है कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? उनसे मेरा सवाल है कि इतने लोग जिन्होंने बड़ा बड़ा सोना चांदी दान किया, जिसकी रसीदें नहीं मिली, उसका क्या तत्वावधान है? उसका आप क्या प्रावधान कर रहे हैं? आप छोटे छोटे प्यादों को, जिनकी 12,000 सैलरी है, जिन्होंने 20 लाख का घर ले लिया, उनको पकड़ के हिंदुओं की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं।
आप हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार मत बनिए, क्योंकि स्वयंभू ठेकेदार बनकर आपने मेरे धर्म को कलंकित करने का काम किया है। आपने धर्म पर और आस्था पर सबसे बड़ा प्रहार किया है। जो गजनबी ने नहीं किया वो आपकी और आपकी पार्टी ने कर कर दिखा दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। आप हर महीने प्रभु राम के दरबार में पहुंच जाते हैं, आपको नहीं पता चला वहां क्या हो रहा है? आपके आका दिल्ली में बैठे हुए हैं, हर श्रेय लेना चाहते हैं राम मंदिर का। मोदी जी को नहीं पता चला वहां क्या हो रहा है? आपने ट्रस्ट बनाया, अपने चुनिंदा लोगों को डाला, एक एक व्यक्ति की आपने गारंटी ली और उन्होंने हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया। और योगी जी और मोदी जी कहेंगे इस पर सवाल ना उठाओ। आपकी कवायद है कि आप कांग्रेस के लोगों को नजरबंद करके सच को छुपाएंगे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जनरल धीरज सेठ ने मंगल को 31वें आर्मी चीफ का चार्ज संभाल लिया। इन्हें जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह ये जिम्मेदारी दी गई है, जो 4 दहाइयों से भी तवील सर्विस के बाद आज रिटायर्ड हो गए। जनरल धीरज सेठ नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़क वासला के साबिक तालिब इल्म हैं और दिसंबर 1986 में उन्हें आर्म्ड कोर में कमीशन मिला था। जनरल उपेंद्र द्विवेदी फौज में 4 दहाइयों से भी तवील शानदार खिदमत के बाद मंगल को आर्मी चीफ के ओहदे से सुबकदोश हो गए और इनकी जगह जनरल धीरज सेठ को नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया है। जनरल द्विवेदी की मैथ का ऑपरेशन तैयारी के आला सतह को बरकरार रखने, फौज की मुख्तलिफ शाखों के दरमियान अहम हमआहंगी को तब्दील करने और तब्दीली के अमल को तेज़ करने और टेक्नोलॉजी को अपनाने, फ़ौज को नए सिरे से मुनज़्ज़म करने और फ़ौजियों पर मरकूज़ इक़दामात को फ़रोग़ देने के लिए याद किया जाएगा। आर्मी चीफ के तौर पर जनरल द्विवेदी ने तमाम शोबों में ऑपरेशन तैयारी को बहुत ज़्यादा तरजीह दी है और सुबकदोश से कबल इन्होंने नेशनल वार मेमोरियल पहुँचकर शोधा को खराज अक़ीदत भी पेश किया। नाज़रीन, आखिर में सुर्ख़ियों पे एक और नज़र। SIR के तरीक़ेकार पर अपोजिशन की तशवीश। 23 जमातों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा खत। TMC ने BJP और इलेक्शन कमीशन पर लगाए संगीन इल्ज़ामात। ऑपरेशन सिंदूर के मामले पर वज़ीर दिफा ने ऐवान को गुमराह किया। कांग्रेस का इल्ज़ाम। इस्तेक़ाक़ शिकनी की कार्रवाई करने का किया मुतालबा। कहा शहीद फौजियों की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असदुद्दीन अवीसी ने यूपी में इंतखाबी सरगर्मियां शुरू कर दी। बिजनूर में इंतखाबी जलसे के दौरान योगी आदित्यनाथ को बनाया निशाना। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर कांग्रेस की कड़ी तनकीद। SIT रिपोर्ट आम करने का भी किया मुतालबा। जनरल द्विवेदी फौजी सरबराह के ओहदे से सुबकदोश। जनरल धीरज सेठ ने नए फौजी सरबराह की जिम्मेदारी संभाली। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।